फोरम ऑफ प्रोफेशनल्स के फोर्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन है नैतिकता, प्रामाणिकता, निपुणता। A very important topic for all the professionals, the way they work and what is important for us. We have Surana Saab as a special, I think, small mistake over here. Surana Saab is special speaker over here for us. And before I start on that, morality या नैतिकता is a differentiation of intentions, decisions and actions between those that are distinguished as proper and those are improper. Moral philosophy includes and involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior. I generally say ethics, I think which seeks to resolve questions of human morality by defining concepts of what is right, what is wrong, what is good, what is evil, what is virtue, what is vice, what is justice, and what is pride. And when naitikta is combined with gyan, which is knowledge, that's what makes a great person. We respect them for their knowledge, for their morality, also calling them a great character. एक important difference ये है कि नैतिकता दिल से होती है और knowledge दिमाग से होता है. When dil and dimag get together, which is we call brain and heart get together, that is what differentiates, I think, right and wrong in the overall part. Naitikta doesn't differentiate between caste, creed, madhab, dharm, or religion, by whatever name it's called. And I come back to Lord Mahavira, who used to who taught us Dhyan, Darshan, Charitra, and that is the ultimate path to attain moksha. He emphasized in education and specific stress on the character, building qualities. Lord Mahavira said that even little knowledge would yield great fruit if it was accompanied by a virtuous conduct. He said noble conduct comprises of self-control, compassion, truth, non-stealing, contentment, right faith, knowledge, and austerity. So let us hear all this from our learned professional, Surana Sir. No introductions are required for him, but I still will take. He is an expert on profession with deep knowledge of agams, whether it is subject of philosophy, ethics, logic, religion, metaphysics, cosmology. I can go on in terms of the way I know and understand Surana Sir, but he's outstanding in terms of his knowledge on everything which has been done. Founding Surana and Surana as a firm, taking it to the best in India and internationally. Go-to lawyer in terms of South India and all over India, and whether it is a corporate law, commercial matters, or a complex social and family disputes. I think he is a name which is being referred across. The firm today represents national and multinational corporations, top business families, which are reputed and charitable organizations. And it's an honor to have Surana Saab with us. First of all, apology, Surana Saab. I think we made some mistake in our part, but important to have you over here. Guide us from your thoughts and the way I think you have been an epitome in profession in terms of knowledge and the entire morality. So over to you, Surana Sir. प्रभु महावीर को वंदन नमन। गुरु हस्ती के अनंत गुणों का स्मरण। आचार्य भगवंत पूज्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब, उनके संत मंडल व सती मंडल के चरण कमलों में वंदन नमन। आदरणीय श्री धनपत साह सेठिया, श्री शेखर साह भंडारी, श्री मनीष साह मेहता और श्री मंजू जी भंडारी, धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 वेबिनार बहुत सक्सेसफुल रहे, उसके लिए आप सबको बधाई।
संघ को वर्चुअल बनाने में विकास जी का बड़ा योगदान रहा, उसको उनको धन्यवाद। बंधुओं, इस वर्ष बड़े गुरुदेव आचार्य भगवंत पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की दीक्षा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वे एक विरले संत थे और अति विरले आचार्य थे। ऐसे संत और ऐसे आचार्य कई शताब्दियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। उनके विरलेपन का एक छोटा सा उदाहरण कि 1000 वर्षों से जितने भी साधु सम्मेलन हुए उनमें सब में यह निर्णय लिया गया कि जैन धर्म के प्रामाणिक इतिहास की कमी खटक रही है और उसका लिखा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सुमेरु पर्वत जितना इतना बड़ा और दुर्गम काम था, किसी ने इसको हाथ में नहीं लिया। लेकिन आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब ने इस अति दुष्कर कार्य को अपने कंधों पर लिया और 20 वर्ष की कड़ी मेहनत करके पूरे भारत में विहार करके सैकड़ों ग्रंथालयों से हजारों ग्रंथों को शोध पूर्वक स्वाध्याय करके आदि से अंत तक 3600 पेजेस का जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखा। उसको 4 भागों में पब्लिश कराया गया। यह चिन शासन की एक अद्वितीय सेवा थी। इन चारों ग्रंथों को संक्षिप्तीकरण कराया गया है, अंग्रेजी में और गुजराती में अनुवाद कराया गया है और इस कार्य को करने और कराने के लिए पूज्य आचार्य भगवंत श्री हीराचंद जी महाराज साहब ने इस सेवा का अवसर मेरी धर्मपत्नी और मुझे सौंपा था। इसलिए इस अवसर पर मैं पूज्य आचार्य भगवंत का बड़ा आभार प्रकट करता हूं। अब मैं आज के विषय पर आता हूं, नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता। गुरु हस्ती को ये तीनों शब्द बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने प्रवचनों, गीतों, प्रार्थनाओं, भजनों में इन शब्दों का उपयोग करके हमको प्रेरणा देने की कोशिश की है। नमो पुरुषवर गंधत्रिणम पेज नंबर 422 पर शीर्षक प्रामाणिकता में उन्होंने कहा है, व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करना है तो नीति और धर्म के नियमों को ठीक तरह से निर्वाह करना पड़ेगा। श्रावक धर्म में तो अप्रामाणिकता और अनैतिकता का कोई स्थान ही नहीं है। व्यापार केवल धन संचय का ही उपाय नहीं है, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अर्थात जहां जीवन उपयोगी वस्तुएं सुलभ नहीं है उन्हें सुलभ कराना व्यापारी की समाज सेवा है। किंतु वह सेवा तभी सेवा कहलाती है जब व्यापारी अनैतिकता का आश्रय न लेकर एकमात्र अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अनुचित लाभ यानी अनरीजनेबल और एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट नहीं करे। गुरु हस्ती, जिनको गजमुनि भी कहते थे, उनके द्वारा रचित गीतों और प्रार्थनाओं में कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। कहता गजमुनि बारंबार कर लो प्रामाणिक व्यवहार, निर्व्यसनी हो, प्रामाणिक हो, धोखा न किसी जन के संग हो, न्याय नीति मय धंधा चावे, प्रामाणिकता को अपनावे, सब धर्मों का सार, हिंसा झूठ न मन में भावे, सब सबको आदर से चावे, होवे न मन में खार, सादा जीवन जिए सभी जन, पश्चिम की नहीं चाल चले जन, सदाचार से प्यार।
धर्म प्राण है देश हमारा, धर्म नीति आधार, सब धर्मों का सार। नर भव सफल करण हित सम, करे शुद्ध आचार, ज्ञान धर्म में लगे रहे हम, उज्जवल हो व्यवहार। बंधुओं, 3 तरह के कानून होते हैं। एक सरकार का कानून, आप सब जानते ही हैं। दूसरे भगवान ने जो कानून बनाया है, जैसे अनुव्रत वगैरह। और तीसरा प्रकृति और पर्यावरण के नियम। ये तीनों कानून सगे भाई हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों कानूनों का सम्यक प्रकार से पूरा पालन करता है, वह व्यक्ति नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता में श्रेष्ठ है। वह खुद का भी कल्याण करेगा और दूसरों का भी कल्याण करेगा। अब कुछ उदाहरण देकर यह कोशिश करूंगा कि नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता के बारे में हम स्वयं समझें और आचरण का प्रयास करें। श्री लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे रेल मंत्री थे, तब एक रेल एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोगों की मौत हो गई। शास्त्री जी ने इसको अपना नैतिक कर्तव्य समझ करके, अपनी गलती समझ करके और रेल मंत्री के रूप से इस्तीफा दे दिया। और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह करने पर भी इस्तीफा वापस नहीं लिया। और इस्तीफा देने के उसी क्षण अपनी सरकारी कार को वापस दे दी और पैदल चलकर बस स्टैंड में गए अपने घर के लिए बस पकड़ने के लिए। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनका कार्यकाल सिर्फ 18 महीने का रहा। लेकिन उन 18 महीनों में उन्होंने भारत का पूरे विश्व में जो गौरव बढ़ाया वह अद्वितीय था। अचानक रूस में उनकी मौत हो गई और बाद में मालूम पड़ा कि न उनका खुद का घर था और न उनके कोई बैंक बैलेंस था। अब कुछ ऐसे सफल लोगों के बारे में विचार करेंगे जिनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क हुआ है। उनमें पहले हैं श्री गोविंद स्वामीनाथन, सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास रहा करते थे। काफी पुरानी बात है, जब इनकम टैक्स की रेट दर बहुत ऊंची हुआ करती थी और कैश ट्रांजैक्शन बहुत हुआ करते थे। लेकिन गोविंद स्वामीनाथन जी का सिद्धांत था कि वो कभी भी फीस कैश में नहीं लेते थे और जो फीस लेते थे वो भी आधी आधी 2 चेक में लेते थे। इसलिए आधी फीस का एक चेक अलग बैंक अकाउंट में जमा करते थे ताकि जब भी इनकम टैक्स भरना पड़े उस अकाउंट से तुरंत भर दिया जाए। और आधी फीस का जो दूसरा चेक होता था वो अपने उपयोग के लिए अलग खाते में रखते थे। यह है नैतिकता, प्रामाणिकता, निपुणता। दूसरे हैं जस्टिस सत्यदेव, मद्रास हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। एक दिन के अंदर उनकी लिस्ट में जितने भी केस प्रिंट होकर आते थे वो सारे के सारे केस वो पहले ही अपने घर से पढ़कर आते थे और सारे केस निपटा करके अपने घर वापस जाते थे। उनके इकलौते पुत्र की शादी हुई। उन्होंने पहले ही अपने संबंधी से कह दिया, आपकी तरफ से 50 लोग आएंगे, मेरी तरफ से 50 लोग आएंगे, बस। और शादी एकदम सादे तरीके से हो गई। अपने इकलौते पुत्र की शादी के लिए उन्होंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी ली और लंच के बाद कोर्ट में आकर वापस केस संभालने लग गए। तीसरी बात उनके लिए यह है कि जिस दिन वो रिटायर हुए उसी दिन शाम को अपना सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी संभला दी और निकल गए।
एक और व्यक्ति जिन्होंने मुझे जीवन में बड़ी प्रेरणा दी है वो है पद्म भूषण पद्म भूषण श्री D.R. मेहता साहब। नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता तीनों इतनी जबरदस्त थी कि उनका कोई गॉड फादर हुए बिना ही प्योरली अपने मेरिट पर आगे बढ़ते गए, क्योंकि बड़े IAS ऑफिसर थे, रिजर्व बैंक के डिप्यूटी गवर्नर रहे, सेबी के चेयरमैन रहे, विदाउट फियर और फेवर अपनी ड्यूटी करते थे, एक पैसा नहीं बनाया, करोड़ों बना सकते थे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की स्थापना की और पिछले 45 वर्षों से विकलांगों की उनको कृत्रिम हाथ और पैर लगाकर सेवा करते हैं और उनको समाज के मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ते हैं। करीब 10 लाख विकलांगों की सेवा इस तरह आज तक कर चुके हैं। पूरे विश्व में उनकी जो विकलांगों की संस्था है वो सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व में। सारे विश्व की विकलांगों की जितनी भी संस्थाएं हैं और सरकारों से जितनी भी सेवाएं होती है उन सबको मिलाकर भी मेहता साहब की जो संस्था है वो उससे ज्यादा काम करती है। इतने ज्यादा गरीब विकलांग सिर्फ इनकी संस्था में ही आकर के सेवा पाते हैं। दुनिया भर में महावीर के नाम को रोशन किया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अफ्रीका आदि देशों में भी विकलांगों की सेवा करते हैं और महावीर का नाम रोशन करते हैं। करीब 20 करोड़ का एक वर्ष का इनका खर्चा है और पूरे दुनिया से कहीं कहीं से पैसे आते ही रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ती है। जो दान के पैसे आते हैं उनके एक एक पैसे का सदुपयोग होता है, एक पैसा भी खुद के लिए खर्च नहीं होता है। इतने बड़े आदमी हैं लेकिन खुद के लिए एक पुरानी मारुति 800 नॉन AC गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में रखी है। रोज दिन में 12 घंटा कम से कम सेवा देते हैं और उम्र जो है 80 के ऊपर है। और एक व्यक्ति इनका नाम आपने सुना होगा, जस्टिस RM लोढ़ा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए थे। देखिए बंधुओं, जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं ना, रिटायर होते ही उनको कोई न कोई नई पोस्ट, नई पोजीशन, कुछ न कुछ नया बड़ा सरकार दे देती है। जैसे कोई सेंट्रल कमीशन का चेयरमैन बना दिया या किसी राज्य का गवर्नर बना दिया या राज्यसभा का मेंबरशिप दे दिया। तो आप समझते हैं कि बात तो पहले ही होती होगी, जब ये रिटायर नहीं होते हैं उसके पहले, अनाउंस तो बाद में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। हमारे जस्टिस RM लोढ़ा साहब पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि मैं रिटायर होने के बाद कोई भी पोस्ट, कोई भी ऑफिस, कोई भी कुछ भी नहीं लूंगा सरकार से। यानी जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, ही वॉज टोटली अनअप्रोचेबल फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटीज। धन्य है RM लोढ़ा साहब की नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता। एक और व्यक्ति जिनको आप जरूर जानते होंगे, जिनसे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। बंधुओं, जब भी कहीं सरकार चेंज होती है, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी की इंपॉर्टेंट टॉप पोस्ट होते हैं IAS ऑफिसर्स के, वो सब नई सरकार के चहेते ऑफिसर्स आकर
वहां उनको बिठाते हैं और पुराने ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक आश्चर्यकारी अपवाद हो गया, एक्सेप्शन। 25 वर्ष तक सीपीएम सरकार में ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले एक आईएएस ऑफिसर को जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो ममता दीदी ने उनको बुलाकर कहा, भाई साहब आपको आपकी हमारी सरकार को जरूरत है, आप हमारी सरकार को भी वैसा ही मार्गदर्शन देते रहें और वहीं बने रहें। कौन थे वो? हमारे सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल के जो अभी अध्यक्ष हैं श्रीमान सीएम बच्छावत साहब, बहुत बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। और ममता जी भी इनके कार्य से अब इतनी प्रसन्न हुई कि उनको वेस्ट बंगाल टैक्स ट्राइब्यूनल का मेंबर बना दिया, यानी जज बना दिया, और ऑटोमेटिकली इनके रिटायरमेंट एज बढ़ गई। कहने का मतलब यह है कि उच्च कोटि की नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता का सब जगह सब समय जाओ। अब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो एक सरदार जी आर्किटेक्ट है। जब मैंने चेन्नई में अपना पहला घर बनाया था तो मैंने इनको अपना आर्किटेक्ट बनाया। बहुत यंग थे और इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन मुझे वो पसंद आ गए, मैंने बना दिया उनको आर्किटेक्ट। और फिर हम दोनों ने मिलकर एक वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को बनाया बिल्डिंग बनाने के लिए। उस कॉन्ट्रैक्टर ने साम दाम दंड भेद सब नीति से हमारे आर्किटेक्ट को कवर करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यंग आर्किटेक्ट सरदार जी टस से मस नहीं हुए। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को रास्ते पर आना पड़ा और हमारा काम सुचारू रूप से हो गया। तो मेरी और हमारे सरदार जी जो आर्किटेक्ट थे उनकी बड़ी मित्रता हो गई। 25 वर्ष बीत गए। एक दिन सरदार जी आर्किटेक्ट हमारे घर आए, मेरे घर में मेरे हाथ में उनकी लड़की की शादी की पत्रिका थामी और बोले, भाई साहब मेरे लड़की की शादी है, आप सबको जरूर आना है। मैंने कहा भाई साहब माफी चाहता हूँ, आपके शादी के भोज में तो शराब उड़ेगी और मांसाहार भोजन खूब होगा, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं आ सकता। वो 2 घंटा बैठे रहे, खूब मनोहार की मेरी करते गए और मैं माफी मांगता रहा, भाई साहब मैं नहीं आ सकता। 2 घंटे बैठने के बाद वो बोले, अच्छा भाई साहब न तो शराब होगी न मांसाहारी खाना होगा, तब तो आप आओगे ना? पूरे परिवार के साथ आऊंगा। और हम सब गए और शुद्ध सादा शाकाहारी खाना था। सरदार जी अपनी बात के पक्के निकले, पक्के निकले। एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा। मेरा छोटा पोता जो है वो स्कूल में खेलते खेलते गिर गया, हाथ की हड्डी टूट गई। उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले गए। उन्होंने कहा इसको भर्ती करा दो, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी हड्डी जोड़ सकते हैं। तो बच्चे ने हम दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उन्होंने यही बात कही। तो हम एक अनुभवी पुराने ऑर्थोपेडिक के पास गए, उन्होंने कहा आप इस बच्चे को मेरे कमरे में 5 मिनट अकेला मेरे साथ छोड़ दो, आप सब बाहर बैठो, अगर बच्चा चिल्लाए या रोए तो आप चिंता फिक्र मत करो। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को साथ लेकर के उस हड्डी को खींच तान करके जोड़ दिया, दवा लगा के पट्टा बांध दिया और हमको बोला आप घर जाओ, 3 हफ्ते के बाद आना। हम 3 हफ्ते के बाद गए, हड्डी एकदम बिल्कुल मजबूत जुड़ गई। तो डॉक्टर साहब ने नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता से अपना काम किया।
50 वर्ष पहले की बात है। हमारे फैमिली डॉक्टर गोपीचंद जैन हुआ करते थे सौकारपेट चेन्नई में। उनके कुछ सिद्धांत थे। मरीजों की भीड़ लगती थी, इसलिए सबको टोकन दिया करते थे। लाइन सर टोकन के समान बैठ जाना और टोकन के अनुसार ही देखते थे, छोटा हो बड़ा हो कुछ। एक बार क्या हुआ, उनके ससुर जी आ गए, करोड़पति थे वो भी, ससुर जी बैठ गए वहां। उनको भी टोकन देकर के लाइन में बैठाया और वैसे ही देखा। एक बीमारी के लिए एक बार ही फीस लेते थे, आप 3 बार दिखाओ, लेकिन फीस एक बार। बुखार आया, जब तक बुखार नहीं जाएगा आप 3 बार जाओगे, एक ही फीस। और दवाई एकदम हल्की देते थे और पीने की दवा जरूर देते थे, यानी हर पेशेंट के लिए पीने की दवा के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशन लिखकर देते थे और पीने की दवा केमिस्ट से बनानी पड़ती थी। और फीस कितनी थी? 2 रुपए। वैसे ही हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मिस्टर वी जगदीशन, पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनकी धाक थी, कभी भी किसी को एक पैसा भी नहीं खिलाया। और आश्चर्य वाली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम कराना चाहो और पैसा नहीं खिलाओ। लेकिन वो इनकम टैक्स कानून में और ऑडिट में एक्सपर्ट थे कि कमिश्नर तक उनसे सलाह लिया करते थे। रीजनेबल फीस में बढ़िया काम करते थे। पूरे सर्कल में, पूरे सीए सर्कल में उनकी नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता की पहचान थी। अब मैं एक हाजी हफीजुर रहमान की अनोखी नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता की बात करूंगा। हमारे क्लाइंट और मित्र हैं जनाब हफीजुर रहमान। काफी बड़ा व्यापार था, कई फैक्ट्रियां थी, कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, बड़ा एक्सपोर्ट का काम था। मक्का मदीना हज गए। ये हज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी पवित्र तीर्थ यात्रा है। रहमान साहब हज से लौटते ही मुझसे मिलने आए, बोले आपसे एक महत्वपूर्ण सलाह करनी है। मैं हज करके अल्लाह से होकर आया हूं, मेरा मन बड़ा बेचैन है। आज तक व्यापार के अंदर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज में जितनी भी चोरियां की है, जितने भी गलत रिटर्न्स भरे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स को पत्र लिखकर मैं अपनी चोरियां, अपनी गलतियां वो सब मंजूर करना चाहता हूं। मैंने उनको बहुत समझाया, भाई साहब आप क्या बोल रहे हो, ऐसा करोगे तो बुरे फंस जाओगे और सारी आपकी जितनी जमीन जायदाद, संपत्तियां, फैक्ट्री सब चले जाएगी, सरकार ले लेगी और जेल भी जाओगे। उन्होंने कहा मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए जो भी चोरियां और मैंने गलतियां की है वो सब मैं स्वीकार करूंगा। ये तो ठान ही चुके थे, ऐसा ही किया। सारे डिपार्टमेंट्स को पत्र लिख दिए, किस वर्ष में कितनी कितनी चोरियां की थी, क्या क्या गलतियां की थी, क्या क्या गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, सब विवरण लिख दिया। सारे डिपार्टमेंट्स चौंक गए, क्योंकि ऐसे पत्र सरकारी दफ्तरों में तो कभी आते ही नहीं है। सब ऑफिसर्स हैरान थे, लेकिन अपनी ड्यूटी तो उनको करनी ही पड़ती है। सब आए, रेड की, बोले आप जैसे सच्चे व्यापारी को हमने आज तक देखा नहीं, इसलिए हम आपके लिए 2 कंसेशन देंगे। एक तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं करेंगे, और दूसरा जो आप ये बंगले में रह रहे हैं उस बंगले को छोड़ देंगे। बाकी आपकी जितनी प्रॉपर्टीज है, संपत्तियां हैं, सब हम सीज कर लेंगे, उनको पब्लिक ऑक्शन में बेचेंगे, टैक्स वसूल करेंगे और आपका केस जो है क्लोज करेंगे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और पूरा सहयोग दिया। ऐसा ही हुआ, आज भी वे मौजूद हैं। इस बात को 30 साल हो गए हैं
90 वर्ष के ऊपर की उम्र है उनकी, लेकिन स्वस्थ हैं, शांति से, प्रेम से, संतोष के साथ धार्मिक जीवन जीते हैं। देर से ही सही, लेकिन नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता पक्की थी। एक और शख्स मेरी जिंदगी में आया, हमारा क्लाइंट भी था, दोस्त भी था, मिस्टर के जैनुद्दीन। उनका एक्सपोर्ट का बड़ा काम था, एक्सपोर्ट में उधार दे दिया, ऐसा फंस गया, मामला एकदम टाइट हो गया, बहुत दुखी हो गया। ऐसा नहीं आया, वो तो तकलीफ थी, ऊपर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे पड़े और शायद अरेस्ट कर लेते। मेरे पास आए, बोले भाई साहब मुझे बचा लीजिए, मैं खर्चे के पैसे तो दे दूंगा, लेकिन आपकी फीस मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, बाद में दूंगा। देखा ठीक है। हमने 1 महीने तक पूरी मेहनत करके उनको क्रिमिनल केस नहीं होने दिया, वो बच गए। अब उनके पास इतनी तंगी थी कि वो मेरी फीस दे नहीं सके, तो उनके मन में दुख है कि मेरी फीस नहीं दे सके, तो उन्होंने एक तरकीब लगाई कि भाई डायरेक्टली फीस नहीं दे सकते हैं तो इनडायरेक्टली तो सुराना साहब के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कैसे भी होशियारी से, चतुराई से, चलने के तुरंत बाद बाहर एक बड़ी जमीन कम दाम में, मैं नहीं चाहते हुए भी मेरी इच्छा के विपरीत उन्होंने मुझे दिलवा दी, और आज उस जमीन के दाम सैकड़ों गुना बढ़ गए हैं। तो इस तरह नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता से उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे फीस दिलाई। बंधुओं, क्योंकि जैन प्रोफेशनल फोरम है, मैं 2 ऐसे जैन प्रोफेशनल्स के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा जिनसे हम सब जैन प्रोफेशनल्स प्रेरणा ले सकते हैं। पहले हैं श्री वीरचंद आर गांधी, वकील, बैरिस्टर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में तथा स्वामी विवेकानंद में उन्होंने एक पत्र में उनकी प्रशंसा की। 1884 में बॉम्बे से जैन समाज के पहले वकील थे, यानी पूरे भारतवर्ष में पहले वकील थे बॉम्बे से, तथा बॉम्बे में वकालत शुरू की। 1891 में शिखर जी पहाड़ के आसपास सरकार ने एक कत्लखाना खोला। वे कलकत्ता गए, कलकत्ता में 6 महीने रहे, कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस करके जीते तथा वो कत्लखाना बंद कराया। वे 14 हिंदुस्तानी और विदेशी भाषाओं के जानकार थे, 9 वर्ष तक वकालत की। 1893 में शिकागो यूएसए में फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स आयोजित हुआ, जिसमें सारे संसार से सब धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। भारत से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया आप जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद ने। और उसी वर्ष भारत से जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया वीरचंद गांधी ने। उनके भाषण ने वहां के 3000 श्रोताओं को इतना मंत्र मुग्ध कर दिया कि उनको अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि कई शहरों से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, और वो आमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। अपने भाषणों से उन्होंने जो गोल्ड मेडल्स और मानदेय मिला, उससे फीस भरकर लंदन में 1 वर्ष रहकर बैरिस्टर की पढ़ाई भी पूरी की और जगह जगह भाषण भी देते रहे। फिर भारत आकर स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। 1895 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पूना में हुआ था, उसमें इन्होंने बॉम्बे प्रोविंस का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद फिर अमेरिका आमंत्रित किए गए। वहां 1896-97
भारत में जो एक भीषण अकाल हुआ था उसकी खबर उनको मिली, तो उन्होंने वहां पर पैसे इकट्ठे किए तथा एक बड़ा जहाज अनाज से भरकर भारत को भेजा। 1899 में फिर अमेरिका और यूरोप इनको आमंत्रित किया गया। जैन धर्म व भारतीय संस्कृति पर उन्होंने कुल 535 भाषण दिए। कई अमेरिकी समाचार पत्रों में उनके भाषणों का सारांश छपा है तथा उनकी सराहना की गई है। कई विदेशी इनके संपर्क में आकर जैनी बने। उनमें से एक हर्बर्ट वारन फेमस है, जिन्होंने जैनिज्म पर एक किताब लिखी और उसमें उनके भाषणों व उनके प्रभाव को दर्शाया है। लेकिन दुख की बात सुनिए, जैन समाज इतना संकीर्ण था कि समुद्र पार करके विदेश जाने के लिए उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया, जिसके खिलाफ स्वयं स्वामी विवेकानंद ने जूनागढ़ के दीवान को एक पत्र लिखा, जिसमें वीरचंद गांधी की अमेरिका में किए गए कार्य की प्रशंसा की है। 1993 में शिकागो यूएसए में सेकेंड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ। उसमें वीरचंद गांधी के 1893 में दिए गए भाषण की प्रशंसा की गई और शिकागो यूएसए में उनकी एक प्रतिमा की स्थापना की गई। 1901 में केवल 37 वर्ष की उम्र में बंबई के पास उनका देहांत हो गया। एक अकेले वीरचंद गांधी ने विदेशों में विदेशी भाषाओं में जितना प्रचार प्रसार जैन धर्म का किया है, उतना वो भी सिर्फ अकेले अपने बलबूते पर, जैन समाज के हेल्प से नहीं, उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। और उनके जाने के बाद आज 120 साल में दूसरा वीरचंद पैदा नहीं हुआ। दूसरे जैन वकील जिनकी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वे हैं श्री दीपचंद जी गार्डी। मई 2008 में मुंबई में हमारे संघ में जो 4 दीक्षाएं हुई थी, उस महोत्सव कार्यक्रम में उनको चीफ अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वे पधारे, भाषण में बोले कि मेरी भी भावना हो रही है कि मैं आचार्य हीराचंद जी के पास दीक्षा ग्रहण कर लूं, पर मुझ जैसे 93 साल के बुढ़े को दीक्षा देगा कौन। गुजरात के एक गांव में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में माता पिता का निधन हो जाने के कारण ननिहाल में रहे और वहां से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कॉलेज और कानून की पढ़ाई के लिए बंबई आए और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर बने। मुंबई में वकालत की। वकालत में पैसे कमाते गए और मुंबई में जमीनें खरीदते गए। मुंबई में उनका लैंड बैंक हो गया। 50 वर्ष की उम्र में रोज का नियमित 1000 रुपया दान देना शुरू किया। रोज की दान राशि को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख रोज का कर दिया। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में रोज 1 करोड़ का दान देते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और गौशालाओं के लिए भरपूर दान दिया। 99 वर्ष की उम्र के बाद भी वे पूरे स्वस्थ थे तथा उनकी मेमोरी, याददाश्त पूरी थी। क्यों? कि जीवन, पहनावा, खान पान बिल्कुल सादा। उनको देखकर
वो अगर रोड पर चलते भी थे, कोई नहीं बोल सकता था कि ये अरबपति आदमी है जो 1 करोड़ का दान देते हैं रोज। नियमित हर रोज 1 करोड़ का दान देने वाले गुजरात में ही नहीं, संभवतः पूरे भारत में वे सबसे बड़े दानदाता थे। और दिन भर क्या काम करते थे? दिन भर जरूरतमंद लोगों से मिलना, जरूरतमंद संस्थाओं के पदाधिकारियों से मिलना, उनकी जरूरत को समझना और दान का चेक काट करके उनको देना। दिन भर यही काम करते थे। अब परिग्रह, दान, एथिकल इन्वेस्टमेंट पर जब भी बोला जाता है या लिखा जाता है तो दीपचंद भाई गाड़ी का उदाहरण आता ही है। बंधुओं, आखिरी बात, तत्व चिंतक पूज्य श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब, वो तो हरदम पुण्य पर बड़ा जोर देते हैं कि भाई पुण्य करना चाहिए, बड़ा जोर देते हैं। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो है जैनाचार्य पद्म भूषण श्री विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब की। एक बार मेरे पुत्र डॉक्टर विनोद सुराणा और मैं दोनों उनके पास बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, वकील साहब, ये सत्यमेव जयते जो बोलते हैं ना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पुण्यमेव जयते। इसलिए पुण्य बढ़ाते जाओ। पुण्य और आज का विषय परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। अगर पुण्य है तो अब आसानी से नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता का आचरण कर सकते हो, उसकी राह पर चल सकते हो। उसी प्रकार अगर नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता की राह पर आप चलते हो तो जबरदस्त पुण्य का संचय होता है जो मोक्ष मार्ग में सहायक होता है। पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान ने जो 9 रास्ते बताए हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, इन 9 रास्तों से, तरीकों से पुण्य कमाते जाओ। नैतिकता, प्रामाणिकता, निपुणता के मार्ग पर चलते जाओ, कल्याण निश्चित है। जय हो आप सबकी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शेखर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सुराना साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं म्यूट पे था, सॉरी, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज इट। आपने जो धर्म और नीति और जिस हिसाब से हम सभी को एड्रेस किया, स्पेशली वीरचंद जी गांधी और दीपचंद जी गढ़ी का जो एग्जाम्पल बताया, द वे दे आर एबल टू प्रैक्टिस in such a good manner profession as well as what they could actually do for the entire dharam was totally noteworthy. I have a few questions. मेरे पास जो 2 questions आए हैं। जिए और जीने दो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आज के युग के अंदर प्रोफेशन में शायद बहुत आसान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति ठान ले तो जरूर इसका पालन कर सकता है। जियो और जीने दो भगवान का सिद्धांत है, और अगर पालन करना असंभव होता तो भगवान ऐसा सिद्धांत देते ही नहीं। मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि अगर हम चाहें, अगर ठान लें तो जरूर इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। और कोई भी अच्छा काम करना तो कठिन होता ही है, मुश्किल होता ही है, इजी कुछ नहीं होता है। इसलिए
मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि भगवान का जो सिद्धांत है जैन धर्म का, जियो और जीने दो, इसको जरूर आप आचरण में लाएं, पूरी कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। आज के प्रोफेशन के अंदर आज कंपटीशन है, आपको किसी को हराना होता है कई बार कुछ चीज करने के लिए या लेने के लिए। उस संदर्भ के अंदर जियो और जीने दो इज व्हाट द क्वेश्चन केम इन फ्रॉम वन ऑफ द participants. I think second question which comes in, Samyak Charitra, which is right conduct, is one of the three jewels which emanates from the Jain Dharam. चरित्र आज के संदर्भ में जरूरी है लेकिन क्रिटिकल नहीं है। आज के संदर्भ में नॉलेज जरूरी है और सॉल्यूशन जरूरी है। आज का जो सब्जेक्ट है नैतिकता, प्रामाणिकता और निपुणता, वही है। नॉलेज बहुत जरूरी है, नो डाउट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरे को कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है। ऐसा है कि नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी है हमारे आचार्य परम पूज्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब बहुत दफे फरमाते हैं कि मन भर ज्ञान और कण भर आचरण। तो कण भर आचरण भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में धनपत साहब एक बार साइलेंट कर लेंगे, प्लीज साइलेंट कर लीजिए इसको, बंद शायद वहां से आवाज आ रही है। धन्यवाद। ऐसा है, कोई भी प्रोफेशनल को अपनी ड्यूटी तन और मन लगा करके 100% फोकस करके अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उसके बाद जीत या हार उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट डू योर ड्यूटी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है? अपना कर्म करो, ड्यूटी करो, रिजल्ट को छोड़ दो। अगर आप अपनी ड्यूटी बराबर करोगे, क्योंकि हमारे आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब ये कई दफा फरमाते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पालन करना ही धर्म है। तो आप एक दो दफे अगर नहीं भी जीतो अपना केस तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपील करो, वहां जीत जाओगे, लेकिन कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। धन्यवाद। I think I'll take a last question for us. One should treat others as one would like others to treat oneself. A very golden rule for नैतिकता, प्रामाणिकता and निपुणता। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और इसको फॉलो करने के लिए यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? मैं आपका क्या सवाल मैं बराबर नहीं समझा। One should treat others as one would like others to treat oneself. ये तो अपने धर्म का सिद्धांत है। भगवान ने भी यही कहा है कि आप अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार आप सबके साथ कीजिए। ये बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यंग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान नहीं है। आज भौतिकता का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आप खुद का भला सोचो, बाकी सबकी चिंता ना करो। खुद का भला तो सोचना ही चाहिए। जियो, पहले जियो, लेकिन साथ में दूसरों को भी जीने दो। दूसरों का बुरा मत करो। किसी का, अभी मैंने जो कहा था कि भाई आचार्य शास्त्री ने कहा एक भजन के अंदर, किसी का बुरा मत सोचो, अपना भला जरूर करो। आप ऊपर उठो, आप आगे बढ़ो, आप पैसे कमाओ,
लेकिन दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश मत करो, दूसरे का खराब मत करो। अपने आप ऊपर उठते जाओगे, सारी दुनिया ऊपर उठेगी, सब उठ सकते हैं ऊपर। इसलिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही है सिद्धांत तो कि खुद भी ऊपर उठो और दूसरों को ऊपर उठाओ, और नहीं उठा सकते हो तो गिराओ तो मत। वो कहते हैं ना, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ठीक है भाई साहब? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कभी जब आपने कुछ चीजें छोड़ी हो, कॉम्प्रोमाइज करी हो, या इन इन दिस ऑर्डर, इसी संदर्भ में कि आपने किसी का भला किया और ऑटोमेटिकली ओवरऑल थिंग्स केम आउट टू बी क्वाइट वेल? दोनों बातें हैं भाई साहब। आप किसी का भला करते हो तो वो आपका भला कर भी सकता है, आप किसी का भला करो तो वो आपका बुरा भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भला करो तो भला ही होता है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। अगर आपके कर्म ही ऐसे हैं कि कोई आपका बुरा करेगा, तो हो सकता है कि वो आपका बुरा करे, लेकिन आप उसको अपना कर्म समझ करके उसको छोड़ दो। वापस उसका बुरा मत करो, वापस जो है उससे आप रिवेंज मत लो, अपना समय बर्बाद मत करो, अपना जीवन नष्ट मत करो, अपना कर्म समझ करके उसको छोड़ दो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जिनका भला किया है उन्होंने भला भी किया है मेरा, और जिनका मैंने भला किया है उन्होंने मेरा बुरा भी किया है। ये सब संसार में होता ही है, इसीलिए इसका नाम संसार है। और ये सब कर्मजन्य बातें हैं, अपने कर्मों के हिसाब ही अपने को फल मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को भोग लेना चाहिए, काट लेना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कर्मा थ्योरी, एंड हम कर्म पे कभी नेक्स्ट फोरम्स के अंदर डिस्कशन के अंदर आएगा, बट एन इम्पॉर्टेंट थॉट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, सत्य के रास्ते पे हमेशा चलते रहना चाहिए, एंड ensure that I think we do things in a very integral, loyal, and honest, and with a lot of honesty, rather than taking any other shortcuts ever. The profession is all about nipunta for us. It is about ethical conduct and about what we want to see all of us grow over a period with a lot of character rather than only material things. उस नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद सुराना साहब, थैंक यू वेरी मच। आप पधारे, हम सबको आपने इतना टाइम दिया। आई विल नाउ रिक्वेस्ट धनपत साहब, आप हम सबको एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही सब मेरी? आराम से। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरु अस्थि, गुरु मान के गुण स्मरण, आचार्य हीरा के चरणों में कोटि से वंदन, और सभी चारित्र आत्माओं को मेरा वंदन। आदरणीय PS सुराना साहब, प्रोफेशनल फोरम के संयोजक भाई शेखर जी भंडारी, श्राविका मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी भंडारी, युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनीष जी मेहता को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी इस वेबिनार के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और हमने इसे सुना। चूंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस फोरम के माध्यम से सभी जो अपने प्रोफेशन में हैं उन लोगों तक आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षण का संचार करने के लिए हम यहाँ विशेष लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आधुनिक युग में अगर धर्म साथ रहेगा तो हम काफी पापों से बच जाएंगे। मैं उन सभी जो प्रोफेशनल वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें ये मनुष्य जन्म, जो सभी धर्म एक ही बात कहते हैं कि दुर्लभ है,
और ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला है, उसका हम कैसे सदुपयोग करें, उसके लिए जो आज का विषय दिया गया वो इतना सुंदर विषय है कि अगर हम प्रामाणिकता और नैतिकता और निपुणता ये अगर हमारे जीवन में होंगे तो हम निश्चिंत रूप से हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। हम ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं, हमें गृहस्थी अपनी चलानी है, उसके लिए हमें अपने प्रोफेशन में रहना ही है, लेकिन उसके साथ में अगर हम निपुणता से अपने इन दोनों नैतिकता और प्रामाणिकता को लेकर के चलेंगे तो निश्चिंत हम, जैसा कि पीएस सुराणा साहब ने भी बताया कि हम अगला कदम अपना लास्ट अंतिम कदम मोक्ष है, उस मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे। मोक्ष के लिए भी हमें इन निपुणता की प्रामाणिकता की आवश्यकता रहेगी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, पीएस सुराणा साहब हमारे बीच हैं, जो हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और इनके साथ में जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मुझे इनका मार्गदर्शन मिलता ही रहा और मैं बहुत नजदीक से आपको देख पाया। वाकई में आपका जीवन जो है एक श्रावक के साथ में ये तीनों चीजें आप में हैं। आप निपुण तो हैं ही, प्लस आप प्रामाणिक भी हैं, और मतलब आप में तीनों चीजें हैं। तो मैं इसमें आपका साथ आपकी धर्म सहायिका को भी बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से आज पीएस सुराणा साहब जो हर समय उनका सहयोग आपको रहा है, मैं इस वक्त में उनको भी नहीं भूलूंगा। तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि भाई आपके साथ में हर समय वो सहयोग करती रहती है। मैं यही कहूंगा कि पीएस सुराणा साहब ने इतने सुंदर और सटीक उदाहरण देकर के हम लोगों को भाई इसमें किस तरीके से ये तीनों चीजें जिनमें पाई जाए है, उन लोगों का जो आपने उदाहरण दिए हैं, उसके बाद में इसके लिए कुछ कहने को रह ही नहीं जाता है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि श्रावक के अंदर ये सब चीजें तीनों होनी चाहिए, तभी वह श्रावक कहलाने के लायक होता है। तो श्रावक में पुराने लोगों से सुना था कि जो श्रावक होते थे उनके राजा महाराजाओं के यहाँ भी उनकी इतनी प्रतिष्ठा होती थी कि वो अगर वो कोई बात कह देते या किसी एक के लिए वो साख अगर डाल देते तो राजा महाराजा भी ये कहते थे कि ये श्रावक है और ये कभी झूठ नहीं बोलता। आज प्रामाणिकता घटती जा रही है, तो हमें सोचना होगा कि हम लोग अगर श्रावक हैं तो हमारे में वापस आनी चाहिए। मैं अच्छा समय नहीं एक बार उन दर्शकों का भी आभार व्यक्त करूंगा जो इस सेमिनार सम्मिलित हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहूँ जो भी मेरे इस कार्यक्रम हो, आप इसको जो भी हमारी गतिविधियां हैं, प्लस हमारी परीक्षाएं अभी जो चल रही हैं, और हमारे आचार्य भगवान श्री हस्तिमल जी महाराज साहब का जो शताब्दी दीक्षा वर्ष चल रहा है, उसमें भी जो आयोजित परीक्षाएं हैं उसमें भी आप अवश्य भाग लें। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद धनपत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। We are almost through 3 and 4 things from our side. हम
generally we have moral values in terms of integrity, honesty, courage, loyalty, fortitude and various virtues. इसको हम हमारे प्रोफेशन में कहें, हमारे उसमें कहें तो मान, माया, लोभ, इन सब चीजों से अगर हम प्रोफेशन के अंदर बच के रहें, इन सब चीजों को पालन ना करें, तो आई थिंक वी कैन गो सिग्निफिकेंटली फर्दर. हम सभी के लिए आई थिंक 4 वेबिनार्स हमने कोविड-19 का एडवांटेज लेते हुए हर सप्ताह किए. हम अगले महीने से कोशिश करेंगे कि हम आपके पास हर 15 दिन में आए. नेक्स्ट वेबिनार 14 जून को होएगा, अगले सप्ताह नहीं है, 14th of June, and from fortnightly, which will be for 2 months, it will move to a monthly webinar, which is the purpose of the entire professional forum. But you all have been associated with us. Thank you very much. Good amount of feedback which we have received across from across the country, as well as I think outside the country, from various professions, from various people, and from all the sides. Young, not very young, people who have been telling for the first time associated with us, people who have been associated with us for long. उनकी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हिंदी में कराया जाए, तो आई थिंक आज हमने कोशिश करी है कि हम हिंदी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें. कुछ लोगों का आग्रह था कि टॉपिक कई बार शायद बहुत अच्छे हैं, कुछ का ओपिनियन था कि शायद आप समझा बड़े अच्छा रहे हैं लेकिन शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. हमने कोशिश करी है कि हम सब चीजों को थोड़ा सा सम्मिलित करें और सभी को एड्रेस कर पाए. कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो थोड़े से ग्रंथों से और गाथाओं से जुड़े हुए ज्यादा होंगे. कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो रोजमर्रा जिंदगी में अच्छी तरह से समझ में आ पाएंगे. आज का टॉपिक वैसा ही था जहां नैतिकता कम्स एज अ नॉर्मल प्रिंसिपल. बट हमारी कोशिश रहेगी दैट वी कम टू यू विथ व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट वी वांट टू गिव इट टू यू. सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. एंड सुराना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कमिंग ओवर एंड ग्रेसिंग अस. आप सबके पास रजिस्ट्रेशन का मौका है. मेरी कोशिश है कि आप रजिस्ट्रेशन करें और जुड़ें. आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारी तरफ से आता है. आप सब क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. आप क्वेश्चन मेल पे भी भेज सकते हैं. आप क्वेश्चन राइट साइड में आपके पास पैनल है, उसमें रख सकते हैं. आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज रखी गई हैं. मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सभी को उन सभी को यूटिलाइज करें, अपने सजेशन दें. And we are eager that you all should have what you want rather than what we want to bring to you. So thank you and thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.